number 2. Write down the first example. Tutorial 2, it is related to unit number 2. We have done the tutorial 1 for the first unit. Now this is the second unit, and it's related the tutorial 2 we are doing right now. Okay, so write down the first example of that. Consider the probability density function f of x that is equal to a into e raised to minus b mode of x is given. Okay, note down this point. It is the mode of x, where x is the random variable whose allowable value range from x is equal to minus infinity to infinity. Find a, the CDF of f of x. Second, the relationship between the a and b. And the third one, the probability that the outcome x lies in between 1 and 2. आपको प्रॉपर दिख रहा है ना? स्क्रीन लार्ज करना है क्या? या मैम इट्स क्लियर. नहीं मैम दिख रहा है. ओके फाइन फाइन. डन? लिख लिया क्वेश्चन? Yes ma'am. Yes ma'am. Okay. So here the PDF function is given and we have to find out the CDF of that. On roll number 38. So PDF is given, but in the PDF equation, the mode of x is given. So mode of x, that means it may be the negative, it may be the positive, right? So as per the given range of x minus infinity to infinity, first you have to make the f of x properly. So you will get the two different f of x. So first write down the f of x. आपका f of x क्या बनेगा? Okay, this is equal to a इंटू ई रेस टू, एक मिनट है मैं वापस कनेक्ट करती हूँ, प्रॉपर लिख नहीं रहा है. a into e raised to minus b mode of x is given. Okay, and the range of x is equal to minus infinity to less than x less than infinity. Fine. Now first, suppose this is the axis line, it is minus infinity, this is the suppose 0, and this one is the infinity. So if x is here, now suppose we are considering x is negative, that means x is less than 0. So which one is here? Okay, and for that, if x is negative, that means x is minus x. So minus b minus x is become positive x. So the formula is become e raised to bx. Okay, so this is the first formula of f of x for the x is less than 0. इश्यू आज प्रॉपर लिख नहीं रहा है. x, हाँ, यहाँ पे ध्यान रखना. Now suppose we are considering x is positive,
mode of x that is positive. So the formula of f of x is become like that. मेरा जहां पे मिसिंग मतलब ब्रेक हो रहा है लेटर्स, आप ध्यान रखना. दिस इज एफ ऑफ एक्स ए इंटू ई रेस टू माइनस पी एक्स. बहुत इश्यू हो रहा है आज. I don't know. Here minus sign is there. I'm not able to write the minus over here. Huh? Write down this minus sign over here. Yeah. This is for the x is greater than equal to 0. अंडरस्टूड. दो इक्वेशन कैसे बना. ए एफ ऑफ एक्स ए इंटू ई रेस टू माइनस बी मोड ऑफ एक्स दिया था. सो एक्स रेंज इज माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी. तो फॉर दैट सपोज वी आर टेकिंग द एक्स इज नेगेटिव. तो मोड ऑफ एक्स की जगह के अगर वी एंड सब्सटीट्यूट द वैल्यू माइनस एक्स, सो इट बिकम ए इंटू ई रेस टू बी एक्स पॉजिटिव बी एक्स. This is for the x less than 0. And when x is positive, then it becomes a into e raised to minus bx. Okay. So there are the two different equations. First you have to write down for the PDF. Clear? Yes, ma'am. Now, next you have to find out the CDF of f of x. Okay. So what is the CDF formula? What is the CDF formula? Capital F of F of x that is equal to integration minus infinity to x minus f of x infinity dx. to x f of x dx. बहुत ही गंदा राइटिंग आ रहा है. जस्ट वेट में मीट वापस ज्वाइन कर रहे हो, मे बी कुछ इश्यू है, आप ट्राई करो. माइनस इंफिनिटी टू कैपिटल एक्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स. दिस इज द फॉर्मूला फॉर द सी डी एफ. ओके. बट हियर f of x that is small f of x pdf, there are two different formula. So first find out the cdf for the first part x less than 0. So write down CDF for x less than 0. तो उसका लिमिट बनेगा माइनस इंफिनिटी टू एक्स ए इंटू ई रेस टू प्लस बी एक्स इंटू डी एक्स. तो उसका CDF फाइंड करो. मैं रिज्वाइन कर रही हूँ. Fine. So first you have to find out the f of x. Now it's proper. Yeah. For the x is less than equal to 0. Okay. अभी हम लोग CDF फाइंड करेंगे किसके लिए x less than 0. So formula is minus infinity to x f of x dx. So we know the f of x for the x less than 0 क्या है आपका f of x a into e raised to capital sorry not capital positive bx into dx. So find out the answer of that. क्या मिला? minus a e raised to bx upon b. माइनस के नहीं आएगा. माइनस साइन ही नहीं है ऊपर, तो माइनस साइन कैसे आया तेरा? मैम इंटीग्रेशन करते समय वो बाद में लोअर लिमिट और अपर लिमिट डाला. अच्छा. हाँ तो फिर 0 हो यस मैम, जाएगा यहाँ ना. माइनस नहीं आएगा, ये या पॉजिटिव है. पॉजिटिव आएगा. e raised to minus infinity is 0. Just you have to substitute the x.
So a is a constant, you can take outside. E raised to bx का integration होगा e raised to bx divided by b with respect to x. The limit is minus infinity to x. So a by b, when you substitute the x, is become e raised to bx. When you substitute the minus infinity, it becomes 0. Fine. So the answer is a by b e raised to bx. Correct? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, fine. Now for the second part, आपको फर्स्ट क्वेश्चन में दो CDF फाइंड करना पड़ेगा बिकॉज x का लिमिट अलग अलग है. नाउ CDF फॉर द x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. So here f of x that is equal to same formula minus infinity to x f of x dx. अभी आगे बताओ क्या आएगा मुझे. Limits will be 0 to x. Limit becomes 0 to x. 0 to x. क्यों? ये तो X to CDF का फॉर्मूला है. infinity. x to infinity. No. अपर लिमिट तो हमें ऑलवेज x ही रहेगा CDF में. रिमेंबर दिस पॉइंट. Infinity to x. इंफिनिटी टू x. उल्टा लिमिट कैसे बनेगा रिया? इंफिनिटी हमेशा वो हाईएस्ट वैल्यू रहेगा ना, तो इंफिनिटी टू x कैसे लिख सकते हैं? मैम देन सिर्फ डायरेक्टली f of x सब्स्टिट्यूट करना. कौन सा वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे? e raised to minus bx. क्यों? वही क्यों सिलेक्ट किया? मैम आपने वो कंडीशन तो दिया था ना कि वो a mod minus b x for x raised x more than equal to 0. ओके, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए अभी जो बोला ध्रुमिल ने वो फॉर्मूला इज करेक्ट. बट इन दिस क्वेश्चन अपने मैंने जो अभी ये फॉर्मूला लिखा है इसमें तो माइनस इंफिनिटी टू x है ना, 0 से ग्रेटर देन के लिए नहीं है. माइनस इंफिनिटी भी तो आता है. अभी देखो यहाँ पे मैं अगर लाइन में ड्रॉ करती हूँ रियल लाइन पे, तो दिस इज माई माइनस इंफिनिटी, दिस इज माई 0, दिस इज माई प्लस इंफिनिटी. नाउ माई x इज हियर. ओके, और यहाँ पे इन जो फर्स्ट हमने दो पीडीएफ लिखा, तो एज पर दिस पीडीएफ इतना पोर्शन का पीडीएफ अलग है और इतना पोर्शन का पीडीएफ अलग है, क्योंकि x लेस देन 0 है, दैट मीन यहाँ पे कहीं पे, तो उसके लिए उसका पीडीएफ अलग है. व्हेन x इज ग्रेटर देन 0 देन x इज हियर, it's lie between the 0 to infinity, so its pdf is also different. Okay, so here what you have to consider, you have to consider this area up to this minus infinity to x, because x is lies in between the 0 to infinity, because x is greater than equal to 0. Okay, तो फिर यहां तक का पीडीएफ अलग है और यहां तक का पीडीएफ अलग है. yes or no? Yes, ma'am. हाँ, तो what we have to do, we have to split the integration. yes, माइनस इंफिनिटी टू क्या आएगा फर्स्ट इंटीग्रेशन का लिमिट? 0. यस, एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस नेक्स्ट क्या आएगा? 0 टू x. नेक्स्ट 0 टू x, अपर लिमिट x ही रहेगा. ओके, तो एफ ऑफ एक्स डी एक्स. तो आपको यहाँ पे फॉर दिस फर्स्ट पार्ट यू हैव टू यूज द पीडीएफ फर्स्ट वन x लेस देन 0 वाला, a into e raised to bx, कैपिटल bx. और फॉर द सेकंड पार्ट यू हैव टू यूज द पीडीएफ a into e raised to minus bx. Is it clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Everyone, ये सिंपल एग्जांपल डेफिनेटली एग्जाम में नहीं आता है. मोस्टली मोड ऑफ के एग्जांपल्स आते हैं जहां पे आपको ये सीडीएफ फाइंड करने के लिए इंटीग्रेशन को स्प्लिट करना पड़ेगा. तो ये 2-3 बार क्वेश्चन पूछा गया है. वैल्यूज अलग अलग रहता है, ये ए एंड बी में बी के फॉर्म में है, समटाइम्स इज गिव्स इन द के फॉर्म, ए वैल्यू समथिंग वैल्यू इज गिवन लाइक दैट. ओके, अपर पार्ट में बी मोड ऑफ एक्स दिया था, उसकी जगह पे आपको शायद ई रेज टू मोड ऑफ 1 माइनस एक्स ऐसा कुछ दिया है, तो वो थोड़ा चेंजेस होगा. बट आपको ये चीज ध्यान में रखना है कि अगर मोड ऑफ का क्वेश्चन है तो डेफिनेटली हम लोग जब मोस्ट ऑफ द ग्रेटर देन के लिए जब करेंगे
तो यू हैव टू स्प्लिट द इंटीग्रेशन, क्योंकि इसीलिए मैंने रियल लाइन एक्सिस पे बताया कि आपको समझ में आया कि ऐसा क्यों करना है, बिकॉज ऑफ द एक्स इज लाइज इन बिटवीन द 0 to infinity, बट एक्स का लेस देन 0 और ग्रेटर देन 0 दोनों के लिए अलग अलग वैल्यू है, तो इसीलिए अपने को लेस देन 0 का अलग पीडीएफ लेना पड़ेगा और 0 to x के लिए अलग पीडीएफ लेना पड़ेगा. ओके, सो रिमेंबर दिस पॉइंट. नाउ इट्स सिंपल, अभी तो सब्स्टिट्यूट करो वैल्यूज और फाइंड करो उसका इंटीग्रेशन. Ma'am, for overall CDF, do we have to add those terms less than 0 and No, greater than no, 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 equals to no, 0? no, 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 no. We have to write down the separate CDF. Okay. दोनों आंसर लिखना है एक बॉक्स में, दोनों के लिए कंडीशन लिखो बाजू में, दिस इज फॉर द एक्स लेस देन 0, दिस इज फॉर द एक्स ग्रेटर देन 0. क्या है सेकंड आंसर एक्स ग्रेटर देन 0 के लिए? A by B bracket 2 minus e raised to minus bx. 2 minus, just wait. A by B, yes, 2 minus e raised to minus bx. Yeah, correct. A by B, 2 minus e raised to minus bx. So you have to write down the answer like that, CDF answer. Okay, box बना लो उसको. For x less than 0, for x greater than equal to 0. हो गया सबका, सबको आंसर मिला है? नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन पे जाए कि नहीं, बताओ हो गया है कि नहीं हुआ? अदर Yes, स्टूडेंट्स ma'am. प्लीज. Ma'am, 1 minute. ओके, जिन लोगों का हो गया है सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करो. सेकंड मतलब फर्स्ट का सेकंड पार्ट. You have to show the find the relationship between the A and B. Yes, ma'am, I'm done. Okay.
Others? First Yes, answer ma'am. done. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Now, second question, you have to find out the relationship between the A and B. How we can find out? Using property integration minus infinity to infinity, then equals to 1 f of x equals to 1. Yeah. We have to use the, whenever you have to find out the constant value, yeah, so when it's like relationship of that, obviously equal to कुछ लेना पड़ेगा. That means we have a one property, area property, right? So area under the PDF that is equal to 1. So integration minus infinity to infinity f of x dx that is equal to 1. So here definitely there are two different PDF, one for the less than 0, one for the greater than 0. So again you have to split the integration minus infinity to 0 and 0 to infinity. So find out the answer. So minus infinity to 0, first PDF, you have to take the a into e raised to bx. For the second part, you have to take a into e raised to minus bx. A is equals to b by 2. Sorry? A equals to b by 2. Okay. A is equal to b by 2. Yeah, so b is equal to 2. Anything you can write. हेलो मैम। Yes. मैम क्वेश्चन में वो सीडीएफ दिया है या पीडीएफ? PDF, small f दिया है ना? फिर मैम वहाँ पे कैपिटल एफ। Capital F. Let me check. मैम यू हैव रिटन कैपिटल एफ। No, it's small f here. You can see capital F. You have to find out which one is written in the A. By mistake, you have written the capital F. Clear? यस मैम। या So other students, did you get the answer? Second, A is equal to क्या था? B is equal to 2 या A equal to B by 2, whatever. Yes, ma'am. Very good. Okay, then find out the answer. Next, what is the next one? C, the probability that the outcomes axis lies in between 1 and 2. What we have to find out here? P of 1 less than x less than 2. Yeah, P of 1 less than equal to x less than equal to 2. That means integration limit is become 1 to 2. 1 to 2 f of x dx. 1 to 2. So it's here x is positive. So you have to take the x greater than equal to, sorry, we have to take the PDF x is greater than equal to 0.
a into e raised to minus bx. Ma'am, the third answer is the half e raised to minus 2x minus e raised to minus x. माइनस x नहीं आएगा ना, Acha, okay, yes, my mistake. इंटीग्रेशन करेंगे x नहीं बचेगा, इट्स अ वेरिएबल. Yes, ma'am, yeah. क्या मिला, बाकी लोगों को आंसर मिला? Ma'am, do we have to keep in terms of a and b, or do we have to substitute that relationship? Substitute the value and write down the answer in only single variable Okay, ma'am. in form of the a in form of the b. So the answer is 1 by 2 e raised to minus b minus e raised to minus 2b. I have taken the relation b is equal to 2a. So I got this answer. If you are represent Yes. answer in a, then you will get a different answer. Okay. Done. थोड़ा स्पीड रखो, अदरवाइज अपने 4 एग्जाम्पल हो गए ही नहीं. Yes, ma'am. Okay, write down the next. The CDF of random variable x is defined by capital F of x, that is equal to 0 for x is less than 1, a into x minus 1 for 1 x is between the 1 to 4, and 1 when x is greater than equal to 4. What is the value of a? Second, what is p of x greater than 2? And third, what is p of 1 less than equal to x less than equal to 3? शिवम, यहाँ पे कैपिटल एफ दिया है. Yes, ma'am. या आपने बाय मिस्टेक सेकंड का फर्स्ट में लिखा होगा शायद. Here the CDF is given, not PDF. Okay. Ma'am, can we do like this? We can take derivative of f of x, and then we can get small f of x, and then we Yeah. can use Yeah. then we can find values and then integrate them.
Yes, yes, you can do. You can use this method. And another method is you can directly find out using this CDF. Anyone you can use. आप साथ में वीर राजन में से एग्जाम्पल सॉल्व कर रहे हैं ना घर पे? स्टूडेंट्स प्लीज रेफर दिस बुक वीर राजन, क्योंकि वो इट इज कंसिडर्ड एज अ टेक्स्ट बुक, राइट? तो एग्जाम में मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस इसमें से आ सकते, चांसेस है। मैं इसीलिए नहीं कर रही हूँ इसमें से, क्योंकि मैंने वो आपको दिया है, तो वो बुक में से सॉल्व एग्जाम्पल्स हो गए तो आपको देख देख के डायरेक्टली कर सकते हो। वही चीज़ मैं यहाँ पे कराऊंगी तो फिर कुछ मतलब नहीं है। वो आप बाई सेल्फ यू कैन डू दिस थिंग, ओके? सो आई एम टेकिंग द एग्जाम्पल्स फ्रॉम द अदर बुक्स, तो आपको नंबर ऑफ द एग्जाम्पल्स वेराइटीज ज़्यादा मिले इसलिए। बट कुछ डाउट है इसमें, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझे बोल सकते हो, पूछ सकते हो वीर राजन में से। बट प्लीज़ ट्राई करो कि वो आप जितने भी सॉल्व एग्जाम्पल है एटलीस्ट वो सॉल्व एग्जाम्पल आप लोग एक बार देखें उसको, ठीक है? क्योंकि बहुत सारा दिया एग्जाम्पल, डेफिनेटली इतना सारा आप नहीं करेंगे, बट एक बार गो थ्रू करो उसको कि ऐसा कुछ नया वेराइटी एग्जाम्पल का तो आपको पता होना चाहिए कि हाउ वी कैन सॉल्व दिस एग्जाम्पल। ओके, क्वेश्चन लिख लिया, सॉल्व करें अभी इसको। एक तो फर्स्ट मेथड, यू कैन टेक द डेरिवेशन ऑफ द CDF, देन डेफिनेटली विल गेट द PDF, स्मॉल f ऑफ x मिल जाएगा। और स्मॉल f ऑफ x का तो मेथड आपको पता है कि कैसे सॉल्व किया जाता है, फाइन। वैसे भी कर सकते हो, या तो फिर डायरेक्टली CDF यूज करके हम कर सकते हैं। तो PDF वाला मेथड आपको पता है, मैं डायरेक्टली CDF से करके बताती हूँ आपको। Okay, ma'am. आप दोनों बोलेंगे तो दोनों भी कर लेंगे, कोई टेंशन नहीं। हियर द कैपिटल मैम f ऑफ x CDF इज गिवन, वाला ही कर दो। ओके फाइन। सो कैपिटल f ऑफ x इज गिवन, क्या दिया था, कुछ कुछ वैल्यूज, जस्ट वेट। ओके, फर्स्ट लेस देन के लिए 0 है, 1 to 4, ओके, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। what we have to find out first what is the value of a, तो डेफिनेटली a आपका यहाँ पे सेकंड फॉर्मूला में आ रहा है, so we will use this only where the x is lies in between the 1 to 4 only, okay? So when we have to find out the CDF for the value of a, so we can write down like that, f of x, yeah, उसके लिए एक प्रॉपर्टी भी है, f of x infinity is equal to 1, ये प्रॉपर्टी किया था हम लोगों ने CDF में। Yes, ma'am. Infinity that is equal to 1, infinity means what, largest value, but here what is the largest value is given for this a 1 minus x के लिए क्या दिया है, 1 to 4, so 4 is the largest value, so we can write down f of x 4 that is equal to a into 1 minus 4, x minus 1 था या 1 minus x था? X minus 1. ओके, हाँ मुझे लगा कि माइनस कैसे आया, हाँ बराबर है, x माइनस 1 था, ओके? सो इट इज 4 minus 1, चेंज कर लेना यहाँ पे। सो आंसर क्या मिलेगा आपको भी, ये दैट इज इक्वल टू 1, दैट इज इक्वल टू 1 बिकॉज दिस इज द प्रॉपर्टी, ओके? सो वी कैन राइट डाउन आंसर, ए आंसर ऑफ ए इज 1/3, करेक्ट? क्योंकि आपको x फाइंड करना है, मैंने f ऑफ 4 क्यों लिया, बिकॉज Hello. 4 ये मेरा प्रॉपर्टी है, f ऑफ इंफिनिटी दैट इज इक्वल टू 1, इंफिनिटी दैट मीन लार्जेस्ट वैल्यू, एज पर योर क्वेश्चन इट इज 4, so we have to find out fx of 4 only, so that is equal to 1, so what is the fx 4,
ये मुझे पता है कि x 1 to 4 के बीच में है, तो a into x minus 1 दिया है क्वेश्चन में, so that is equal to 1, so it becomes a is equal to 1 by 3. मैम बट एक्चुअली वो लोग ने एक्स ये भी दिया ना, 4 इज एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4, लाइक इन्फिनिटी तक नहीं जाएगा वो? नहीं, बट आपको x फाइंड करना है ना, जो क्वेश्चन में x का x वेरिएबल कहाँ पे प्रेजेंट है, sorry a, Okay, you जो have to find out the a, not x, huh? You have to find out the a, where is a here only, okay. तो a के लिए a Okay, जहाँ पे ma'am. प्रेजेंट है, f of x इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस 1, सो वहीं पे x का रेंज क्या है, 1 to 4, तो वहीं पे उसके लिए इंफिनिटी क्या हो गया, दैट इज लार्जेस्ट वैल्यू क्या हो गई, 4 हो गई, तो यू हैव टू सब्स्टिट्यूट द 4 ओवर हियर, सो विल गेट द आंसर ऑफ a. Yes, ma'am. Now what is the px greater than 2, ये तो आपको आना चाहिए, तो बहुत किए ऐसे एग्जांपल, क्या करेंगे, x इज ग्रेटर देन 2 दिया है, तो क्या करना 3 पड़ेगा plus पहले, 4. क्या क्या बोला, 3 plus 4, 1 समझ minus में नहीं b आया, x less than equals to 2. यस, क्योंकि ये तो ये हमारी डेफिनेशन नहीं है ना एफ ऑफ एक्स की, तो एफ ऑफ एक्स की डेफिनेशन क्या है, 1 माइनस पी ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू होना चाहिए, वी कैन राइट डाउन एक्स लेस देन इक्वल टू 2, तो ये हो गया आपको एफ एक्स 2, डिस्क्रीट में मैंने क्या बोला था, जो भी है वो डायरेक्टली वैल्यूज लिख सकते हैं, दैट इज एफ एक्स 2, व्हेन यू सब्स्टिट्यूट द वैल्यू 2, अगर 2 को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या आएगा, 1 by 3, ए का वैल्यू है 2 minus 1, तो आंसर इज 2 by 3. Yes, ma'am. ओके, तो ये हो गया आंसर सेकंड. थर्ड आंसर क्या था, थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज द p ऑफ 1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 3, ये कैसे फाइंड करेंगे बताओ, चलो सिंपल है, बहुत सिंपल है, p of 1 plus 2 plus 3. नो, डिस्क्रीट वैल्यूज दिया है क्या, p ऑफ 1 के लिए इतना है, p ऑफ 2 ये है, p ऑफ 3 ये है, टेबल No, दिया ma'am. हुआ है, इट इज अ मास फंक्शन, मास फंक्शन नहीं दिया है यहाँ पे, इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी नहीं दी है अपने, देन रेंज इज गिवन, अभी क्या करेंगे बताओ, तो सिर्फ एक या Ma'am, दो स्टूडेंट से हो गया, we have the value of p x greater than equal to 4, तो वो 1 minus करके मैम 0 to 1 और 4 to 3 सब्ट्रैक्ट कर देंगे. 0 to 1 एंड 4 to 3 को सब्ट्रैक्ट कैसे तो मैम वो करेंगे, बीच का रेंज बच जाएगा. हाँ वो तो बराबर है, रेंज के लिए तो बराबर है, पर उसके लिए सीडीएफ क्या कंसीडर करेंगे, एफ ऑफ एक्स किस वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे आप इसमें, a x minus 1. x minus 1 इट इज बिटवीन द 1 to 4, तो फिर वो कैसे कंसीडर 1 to 3, तो व्हाट अबाउट द 3 to 4 के लिए तो भी वही है, बहुत सिंपल है, प्रॉपर्टीज चेक करो, चलो सीडीएफ की प्रॉपर्टी देखो, लिखा था, सीडीएफ की प्रॉपर्टी है आपके पास, लिखा था आप लोगों ने, yes ma'am लिखा है. चेक करो प्रॉपर्टीज, p of 3. ये थी प्रॉपर्टी है, if x1 Yes, less ma'am. than x2, so probability of this between range we can write down that is equal to f of x2 minus f of x1, ये हमने प्रूव भी किया था, yes or no, Yes ma'am, yeah. yeah, so this part is given,
x की जगह पे 1 रखो, x1 की जगह पे, और x2 की जगह पे 3 रखो। तो f ऑफ x1 सॉरी x1 सॉरी सॉरी f ऑफ x2 क्या है आपका 3 है, और f x 1 है। दोनों का सब्स्टिट्यूट करो, f x 3 फाइंड करो। 2/3. Yeah, answer is 2/3. One by three, 3 minus 1, minus 1/3, 2 minus 1, सॉरी 1 minus 1, ये तो 0 हो जाएगा, नहीं क्या हुआ, 1/3, 3 बराबर है, हाँ, is 1 minus 1 is 0, so answer is this part is 0, this is the final answer 2/3. और अगर दिस इज द फर्स्ट मेथड, ओके, सीडीएफ से डायरेक्ट किया, सेकंड करने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ रफली। अगर आपको सीडीएफ दिया है, ओके, और आपको पीडीएफ वाला जो इंटीग्रेशन वाला मेथड हम यूज करते हैं, तो पहले तो हम लोगों को पीडीएफ फाइंड करना पड़ेगा, मतलब स्मॉल एफ ऑफ एक्स। तो क्या करेंगे, डी बाई डी एक्स कैपिटल एफ ऑफ एक्स, ओके। तो आपको कैपिटल एफ ऑफ एक्स, आपको जो वैल्यूज दी है, दैट इज फॉर द एक्स इज 1 लेस देन इक्वल टू 4, उसके लिए जहां पे एक्स वेरिएबल इज प्रेजेंट, ओके, तो सिर्फ हम लोग उसका ही डेरिवेशन करेंगे। तो क्या है, ए इंटू एक्स माइनस 1 dx बाई dx, ओके। तो उसका अगर डेरिवेशन किया तो डेरिवेशन मुझे कुछ तो मिलेगा x का स्क्वायर बाय 2 1 का 0, ओके। आंसर इज a फॉर द x इज बिटवीन द 1 to 4 एंड 0 फॉर अदरवाइज। तो हमारा ये पीडीएफ बन जाएगा। अभी पीडीएफ पता है, अभी मुझे वैल्यू ए का वैल्यू फाइंड करना है, तो डेफिनेटली एरिया इज इक्वल टू 1, तो मुझे ए का वैल्यू आंसर मिल जाएगा इसमें। सेकंड क्या करना था अपने को, फाइंड करना था, रेंज फाइंड करना है 1 to 3 के बीच में, थर्ड वन, तो इंटीग्रेशन का रेंज ले लूंगी 1 to 3, और जो पीडीएफ है मेरा ए है इंटू डी एक्स, तो मुझे वो आंसर मिल जाएगा। और उससे पहले था पी ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 2, तो ग्रेटर देन 2 दैट मीन लिमिट बन जाएगी आपकी 2 to 4, ओके। तो वो लिमिट रख के हम लोग उसका आंसर फाइंड कर सकते हैं। क्लियर? तो आप पीडीएफ से भी कर सकते हो, Yes, ma'am. ओके। नाउ राइट नाउ द नेक्स्ट, हो गया ना कंप्लीट सबका? कोई सेकंड क्वेश्चन, एग्जांपल नंबर No, 2 किसी का बाकी नहीं है ना, कोई लिख नहीं रहा ना? चेंज करूं मैं? बाकी सब लोग सो गए क्या बाकी लोग? नो मिस। ओके ओके No, ओके ma'am. ओके, जग गए आप लोग, सही है फिर तो। जो लोग सो रहे हैं उठ जाओ जल्द, आपको जैसे यहाँ पे लेक्चर खत्म होगा तुरंत ही ट्यूटोरियल सबमिट करना है, मैच टाइम नहीं देने वाले किसी को। मैम अभी रफ में लिख रहा है। मैम हम लोग ने रफ में लिखा है। जो यस ना कैसे एकदम बेकार हैंडराइटिंग में। या बहाने चालू हो जाते हैं, तब अभी सब लोग कैसे उठ मैम गए, अब सबकी आवाज आएगी मुझे। मैम सच में है। अरे जो, हाँ वही आप तो, मुझे फोटोज यही सुनना भेजिएगा, था। नहीं दोनों नहीं से नहीं, हमने मुझे ये, फोटोज भेजते आपको। अरे डियर मुझे भी हैंड पता राइटिंग है, भी था। मैं आपको टाइम दूंगी, मुझे सिर्फ आवाज सुननी थी कि बाकी लोग जाग रहे हैं कि नहीं, इसलिए बोला मैंने ये। मैम बस हार्ट अटैक दे रहे थे। हाँ, आपको कुछ ऐसा देना पड़ता है बीच बीच में उठाने के लिए ना, अदरवाइज कुंभकर्ण की तरह सोते रहते हो लेक्चर में। चलो राइट डाउन द नेक्स्ट वन। रैंडम वेरिएबल x हैज द पीएमएफ इज गिवन। पीएमएफ का फुल फॉर्म है प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। नाम देख के मतलब सुन के ऐसे डरना नहीं है कि भाई ये क्या दिया था, मैम ने पढ़ा नहीं था ऐसा पीएमएफ। तो जब भी आपको एक टेबल, जैसे हमने पहले वो डिस्क्रीट के लिए किया था, तो डिस्क्रीट में जो प्रोबेबिलिटीज दिया जाता है फॉर द पर्टिकुलर वैल्यूज ऑफ एक्स, उसको पीएमएफ बोलते हैं, दैट इज अ प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, ओके। सो हियर द पीएमएफ इज गिवन for x equal to 0, x equal to 1, x equal to 2 and x equal to 3. Now you have to find the CDF. बहुत ही सिंपल है,
मैंने एक क्वेश्चन इसीलिए लिया है, बहुत सिंपल है, बट मुझे सिर्फ ये पीएमएफ का कंसेप्ट क्लियर करना था कि कभी एग्जाम में आ गया कि पीएमएफ किया है सीडीएफ फाइंड करो, तो आपको आना चाहिए। पीएमएफ मतलब क्या, डिस्क्रीट वैल्यूज दिए हुए हैं प्रोबेबिलिटीज फॉर द एक्स ऑफ द 0 1 2 3। थोड़ा स्पीड रखना क्वेश्चन लिखने के लिए, या तो स्क्रीनशॉट ले लो। लिख लिया, चेंज करूं? No, ma'am, wait. अरे स्पीड रखो, इतना क्वेश्चन। अभी तो हो जाना चाहिए। बताओ कैसे सॉल्व करेंगे? We have to add all the probabilities. Yeah. So first find out the CDF fx0 then fx1, जो जो अलग आपको PMF दिया है ना उसका सबका CDF फाइंड करो। तो when you find out the probability fx0 क्या आएगा, px0 क्या था आपका, px0 था हमारा 1/6 ना, yeah, so it is 1/6। now when you have to find out the next value x equal to 1 दिया है शायद, तो क्या करना पड़ेगा, px0 प्लस px1, तो आपको मिलेगा f(1), जो भी वैल्यूज दी है दोनों का एडिशन करो। नेक्स्ट f(2), सबका 0 1 एंड 2 का एडिशन, देन fx3 दिस प्लस 3। ये मिलने के बाद CDF को प्लॉट करना, ठीक है। की वैल्यू दी थी 0 1 2 3, तो यहाँ पे CDF बनाना है आपको। ये क्वेश्चन में आपको अलग अलग ऐसे एफ ऑफ एक्स दिया हुआ था, समटाइम्स दे गिवन इन द टेबल फॉर्म। सपोज दिस पीएमएफ गिवन एक्स 0 1 2 3, यहाँ पे आपको पी ऑफ एक्स दिया हुआ है और उसका CDF फाइंड करना है। तो वही सेम मेथड, फर्स्ट एक्स इक्वल टू 0 का CDF, फर्स्ट का ओनली फर्स्ट पार्ट, सेकंड के लिए फर्स्ट एंड सेकंड का एडिशन, थर्ड के लिए फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड का एडिशन, लाइक दैट। तो जब भी पीएमएफ दिया है क्वेश्चन में, तो हम लोगों को डिस्क्रीट वाला एग्जांपल सॉल्व करना है CDF का डिस्क्रीट फॉर्म में। Yeah, f(0), f(1) is equal to 1/2, f(2) is equal to 0.8
and f of 3 is equal to 1. Definitely maximum value 1 आएगा, last value. So 0 पे मिला 1/6, 1 पे मिल रहा है 1/2. So here is suppose this is 1/2, this point. 2 पे मिल रहा है आपको 0.8, मतलब this point. और लास्ट में मिल रहा है आपको 3 पे it's 1. ओके, दिस इज द 1. आप प्रॉपर करना, मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मैंने ऐसा बनाया. तो आप क्या आएगा 0 से, सॉरी, स्टेप फंक्शन बनेगा आपका लाइक दिस, देन अप, देन दिस, देन अप, देन दिस एंड अप. क्या है 1/2, 0.8, this and like that. This is the 1 value. Okay. तो ये स्टेप फंक्शन आपको ऐसा CDF बताना है प्लॉट करके. क्लियर? डन? Yes, ma'am. अदर स्टूडेंट्स, वैल्यूज आंसर सबको मिला. ये 1/2 आया है, ये 0.8 आया है और लास्ट वन इज 1. Yes, ma'am. Okay, write down the last one. Consider the random variable x with the PDF. f of x is equal to k1 plus x. थोड़ा आगे पीछे हो गया है. Okay. Yeah, it's given like that. F of x is equal to k into 1 plus x for the -1 x less than equal to 0. Then second, f of x is given k into 1 minus x, 0 less than equal to x less than equal to 1 and 0 for otherwise. Find k and plot PDF. Second question, find CDF. स्क्रीनशॉट ले लो, मैं चेंज कर रही हूँ. Okay. So first you have to find out the value of k. You know how we can find out value of k? Integration that is equal to 1. Okay. But here again there are the two different limits are given. Two different PDF are given for the two different range of x. So we have to split the integration. So first minus infinity to 0 f of x dx plus 0 to infinity f of x dx. Correct? That is equal to 1. So इसका आपका लिमिट क्या बनेगा? फर्स्ट का माइनस लोअर लिमिट क्या दिया? -1 दिया है और उसके लिए आपका k1 प्लस एक्स दिया है. करेक्ट? नाउ 0 to 1 दिया है यहाँ पे और लिमिट आपको दी वैल्यू दिया है k इंटू 1 माइनस एक्स डी एक्स, दैट इज इक्वल टू 1. तो ये आप सॉल्व करेंगे तो आपको यहाँ पे k का कुछ तो वैल्यू मिलेगा. ठीक है, आंसर लिख के रखो वेरीफाई करने के लिए. k शुड बी 1. k 1 मिल गया तो अभी आपका f ऑफ x को प्लॉट करना है.
तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 1 plus x and 1 minus x. This is for the -1 less than x less than 0, and this is for 0 less than equal to x less than equal to 1. Okay, and 0 for otherwise. तो ये बन गया आपका f of x का फॉर्मूला आफ्टर द सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ k. अभी इसके लिए आपको प्लॉट करना है. ओके, दिस इज माय x, x का लिमिट है -1 to 1 और दिस इज माय 0. तो फॉर दिस पार्ट, फर्स्ट पार्ट, सपोज आई एम सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज -1 इन द x, तो क्या बनेगा, 1 minus 1 इट इज 0, तो -1 पे मुझे, ये आपको सिग्नल एंड सिस्टम में आता होगा प्लॉट करना, फिर भी मैं बता रही हूँ. -1 पे मुझे x वैल्यू मिला 0, तो हियर देन व्हेन आई एम गोइंग टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यू 0 ओवर हियर, तो 0 पे आ रहा है मेरा 1, सपोज दिस इज माय 1. ओके, तो ये 1 यहाँ पे मिला. व्हेन आई सब्स्टिट्यूट द वैल्यू 0 हियर, sorry 1, capital 1, for I have to use the second formula, तो again it is 0. okay, it's become like that. अगर आपका बीच का रेंज यूज करेंगे -1 to 0, that is -0.5, तो एट दैट टाइम आई विल गेट द आंसर इज -0.5. तो सपोज यहाँ पे आ रहा है सिमिलर लाइक दिस, तो ये एंगल क्या बन रहा है, दैट इज योर ट्रायंगल. तो आपको ये फॉर्म ये मिल रहा है यहाँ पे. तो दिस इज हेलो मैम, यस यस, मैम टाइम इज अप. हाँ मुझे पता है, इसीलिए मैं फटाफट से आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ कि आप बाद में कर सकते. ठीक है, तो मैंने प्लॉट करना सिर्फ बताया. तो प्लॉट कैसे हुआ, यू हैव टू सब्स्टिट्यूट ऑल द वैल्यूज -1 0 एंड 1 ओवर हियर, यू विल गेट दिस आंसर्स. सो इट बिकम्स लाइक दैट, ट्रायंगल मिलेगा यहाँ पे. ओके, सो दिस इज द पीडीएफ व्हिच यू हैव टू प्लॉट. नाउ सेकंड क्वेश्चन क्या था, यू हैव टू फाइंड आउट द सीडीएफ. सेम यहाँ पे सीडीएफ का दो अलग अलग रेंज है, लेस देन 0 एंड ग्रेटर देन 0. तो दोनों रेंज लेके अलग अलग सीडीएफ फाइंड करना है, जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था. एक क्वेश्चन कंप्लीट कर लेना इन ट्यूटोरियल, और ट्यूटोरियल आज इवनिंग 6 o'clock से पहले मुझे सबमिट करना है, अदरवाइज आई विल नॉट कंसीडर योर ट्यूटोरियल फॉर योर मार्क्स. ओके फाइन. ट्यूटोरियल 2 सबमिशन का शीट आपको शेयर विद इन 1-2 आवर्स में मैं शेयर कर लूंगी, सो यू कैन सबमिट. एनी डाउट? नो मैम. Okay, you can leave then. Thank you. Bye. थैंक यू. Bye. Thank you, ma'am.